मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करें, उसके साथ आप बहुत सारे मॉक्स भी प्रैक्टिस करें और सीसेट को इग्नोर नहीं कीजिए बिकॉज अभी रिसेंटली 2-3 सालों में लोग जीएस की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं बट सीसेट नहीं क्लियर कर पा रहे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट पे बिकॉज यहाँ से सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि मैं मेंस के लिए बिल्कुल रेडी थी इवन बिफोर प्रीलिम्स। तो मुझे ये था कि अगर प्रीलिम्स इस बार निकल जाता है तो मुझे मेंस नहीं छोड़ना है। तो ये अच्छा है कि आप दोनों को साथ लेकर चलें एंड आफ्टर जनवरी आप कंप्लीट फोकस प्रीलिम्स पे करें, मॉक्स लगाएं और उसको बिल्कुल हल्के में ना लें। मैम आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मुस्कान है, मैं फुलेरा से हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपनी स्कूलिंग फुलेरा से ही की, उसके बाद मैंने बीएससी किया है केमिस्ट्री में जयपुर से और लास्ट ईयर मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है एंड सोशियोलॉजी इज़ माय ऑप्शनल आल्सो। मैम अगर हम बात करें आपके इसकी अटेम्प्ट की तो यूपीएससी में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है आपका? इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटर। ओके, तो मैम ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस मतलब पहली बार आपने मेंस लिखा है और पहली बार ये आपने इंटरव्यू दिया है। तो इस बार जो आपने क्या अलग किया था प्रीलिम्स में और मतलब जो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट थे उसके कंपैरिजन, क्योंकि आपने पहली बार मेंस प्रीलिम्स भी पहली बार ही आपका क्वालिफाई हुआ है, तो क्या कुछ अलग किया था, क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो मैं कॉलेज में थी, आई जस्ट completed my graduation so I could not practice mocks. I just only revised basic books, so it was the flaw because you cannot directly go to examination and then expect that you will solve every question, so that was the flaw. And in the second time, in terms of preparation I think I did good, but I got panic while attempting the paper. सो आई थिंक प्रीलिम्स दिन ब दिन बड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो आपको पेपर सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है जिससे आपका एक्यूरेसी जो है अटैम्प्ट का वो बढ़ सके एंड आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ा सकें। तो प्रीलिम्स के लिए ये बेसिक फॉर्मूला रहेगा, कम पढ़िए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आई गेव अराउंड 40-50 मॉक्स फॉर प्रीलिम्स, so it worked also because you get the idea of logical techniques and educated guess while performing mocks, and that really helped in my final day. This year the pattern also got changed in the prelims. Still I could clear because of the much practice of mocks. And for mains I would say the strategy was same, that read less, revise more and practice more. I have given so many mock tests for mains also, sitting at my home only. For optional also, optional is the key. You should have command of the subject of the optional, the concepts, the syllabus and also the writing part. Like I have sociology is my optional, so what I focused upon कि जो writing है आंसर की वो बहुत अच्छा हो, जनरल से थोड़ा अलग हो. That thing would work for mains. You cannot ignore essay and ethic. That is a game changer. And for GS, I followed basic books, but I read lesser content and focused more on writing. So that was my whole strategy. मैम क्या कहते हैं पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपने कितने साल के पीवाईक्यूज लगाए थे? I would say for prelims, I did last 10 years previous year questions, and for mains also 2013 onwards when pattern got changed, I practice all PYQs, and it is very important because you get to know about how are the essence of questions that UPSC is asking, because sometimes we find the repeat of exact topic in the mains exam, but the essence of question is different because of the change of the directive word, that sometimes it is mentioned how, sometimes it is mentioned to what extent, so the whole answer changes, the tone of the answer changes, and this is the key of mains. It doesn't matter how much you revise, how much you read, if you did not address the demand of the question in the examination hall, you cannot score good in mains. So I think I focus more upon PYQs for understanding the question demands and the mindset of the questions that UPSC is asking. So it helps a lot. तो मैम मेरे जहन में एक और सवाल उठा है प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स ही होता है जो मेन रोड़ा अटकाता है। एक्चुअली मैं उसके जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है थोड़ा मेंस लिखने के लिए, और कंटेंट तो होता ही है एस्पिरेंट के पास जब प्रीलिम्स ही क्लियर कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको क्या लगता है कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि उनका प्रीलिम्स ना रुके कम से कम? क्योंकि प्रीलिम्स एक बार निकल जाए तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है और मेंस अच्छे से वो प्रिपेयर करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या कहेंगे प्रीलिम्स के बारे में और थोड़ी आपकी जो स्ट्रेटजी थी और थोड़ा सा स्ट्रेटजी को अपनी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे? ये प्रीलिम्स की प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है बिकॉज आई कुड नॉट क्वालिफाई लास्ट ईयर,
मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करें, उसके साथ आप बहुत सारे मॉक्स भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हेल्प करेगा। और कभी कभी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, ये मैगज़ीन भी पढ़ लें। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए एक मैगज़ीन फॉलो की थी। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं और उसको आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। और सीसेट को इग्नोर नहीं कीजिए, बिकॉज अभी रिसेंटली 2-3 सालों में लोग जीएस की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं बट सीसेट नहीं क्लियर कर पा रहे। तो आई थिंक लास्ट 2-3 मंथ्स में आपको सीसेट को वीकली टेस्ट देना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। प्रीलिम्स के मॉक्स आपको सेक्शनल और एफएलटी दोनों लगाने चाहिए। करंट अफेयर्स पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे हर एस्पिरेंट सही करता है, जो भी क्लियर करने वाला होता है, वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट पे, बिकॉज यहाँ से सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये 2 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड कर लेंगे, इनकी एक्यूरेसी बढ़ा लेंगे, तो आपकी कट ऑफ प्रीलिम्स की आसानी से क्लियर हो जाएगी। एंड मेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि प्रीलिम्स की तैयारी से पहले ही, मतलब दिसंबर तक आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स आपको स्पेसिफिकली आफ्टर जनवरी स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स निकालना इज़ ए वेरी बिग टास्क। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जिस साल प्रीलिम्स निकल रहा है आपका मेंस ना रुके। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं मेंस के लिए बिल्कुल रेडी थी इवन बिफोर प्रीलिम्स। तो मुझे ये था कि अगर प्रीलिम्स इस बार निकल जाता है तो मुझे मेंस नहीं छोड़ना है। तो ये अच्छा है कि आप दोनों को साथ लेकर चलें एंड आफ्टर जनवरी आप कंप्लीट फोकस प्रीलिम्स पे करें, मॉक्स लगाएं और उसको बिल्कुल हल्के में ना लें। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर में आपने क्या आपकी स्ट्रेटजी की? आपने नोट्स बनाए थे या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ा था या फिर आपने मंथली मैगजीन जो आती है मार्केट में उन सब से कवर किया था? मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी। जब से मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की है वो हमेशा साथ रहा है, बट मैंने कभी न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाए बिकॉज वो मुझे थोड़ा कम फीजिबल लगता था। तो मैंने जो अपना बेसिक सोर्स है वो मंथली मैगजीन को बनाया था, जिससे मैं रिवाइज़ करती थी एटलीस्ट 4-5 टाइम्स बिफोर एवरी एग्ज़ाम। भले ही प्रीलिम्स हो, मेंस हो, रिवीजन 4-5 टाइम्स होना चाहिए और एक ही सोर्स पर आपको स्टिक करना है। आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज़ कर लीजिए और उसी पर आप एंड तक स्टिक करिए, बिकॉज कभी क्या होता है कि कोई और हमें कह देता है कि ये मैगजीन ज़्यादा बेटर है तो हम स्विच कर लेते हैं, बट दैट वुड नॉट हेल्प। उससे हमारा सिर्फ माइंड में कन्फ्यूज़न बढ़ता है और क्लैरिटी कम होती है। तो कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कीजिए। और न्यूज़पेपर आप डेली रखने का फ़ायदा ये है कि आपको अवेयरनेस रहती है कि आसपास क्या चल रहा है। तो जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आसानी होती है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी। ओके मैम, इसके अलावा जो नोट्स वगैरह होते हैं और इस टाइम जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है एक्चुअली में, क्या वो नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर चैट जीपीटी वगैरह? क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी भी बड़े स्केल पर यूज किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस सब चीज़ों के बारे में? एक्चुअली मैं इतना टेक सेवी नहीं थी, मैं अपने होम टाउन से प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। तो मैंने तो सब बुक से मोस्टली प्रिपेयर किया है, हार्ड कॉपी से प्रिपेयर किया है। नोट्स भी मैंने सब पेपर एंड पेन पे ही बनाए। बट हाँ, करंटली ये ट्रेंड है कि आप चैट जीपीटी और जेमिनी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप ब्रीफ नोट्स निकाल सकते हैं। ऑल्दो आई माई सेल्फ नॉट फॉलोड इट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, बट इंटरव्यू में उसने मुझे हेल्प किया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो यस, आप उसको बेस बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपका जो अंडरलाइंग बेस है बुक से जो बनना चाहिए, न्यूज़पेपर से जो बनना चाहिए, उसको आपको रिप्लेस नहीं करना। वो सिर्फ आपको सप्लीमेंट कर सकता है कि अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिक बुक से पढ़ने के बाद उससे आइडिया ले सकते हैं, बट डोंट रिप्लेस इट विथ बुक्स, बिकॉज बुक्स अल्टीमेटली एक अलग एनलाइटनमेंट आपको देकर जाती है। तो मैं तो बुक्स ही ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ओके मैम, मेरा लास्ट सवाल है कि आप क्या एडवाइस करना चाहोगी स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो इस बार प्रीलिम्स में बैठना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि इतना एग्ज़ाम का हाइप मत बनाइए, इसको एग्ज़ाम की तरह ट्रीट कीजिए। बिकॉज पहले अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने भी यही किया था। आई वॉज थिंकिंग कि अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। उसकी वजह से मैं एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कर गई, बिकॉज मुझे लग रहा था ये नहीं हुआ तो सब खत्म। सो वो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, हमें इसको सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लेना है। ये हमारे गोल का सिर्फ एक रास्ता है, हमारा गोल नहीं है। तो जब हम ये सोच लेंगे तो हम काम रहेंगे, तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन भले ही कितने घूम जाए आप इजीली टैकल कर लेंगे। सो दैट वुड बी माय मैसेज फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम। थैंक हम यू। उम्मीद करेंगे कि आपका अगली बार लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू ओके, सो थैंक यू। मच। ऑल द बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट।